دوستوں ساتھیوں السلام علیکم. آپ خیریت سے ہوں گے؟ ذرا پریپریشن میں ٹائم لگتا ہے، کچھ اور بھی کام ہوتے ہیں، کوئی بزینس ہوتی ہے. کسی صاحب نے ایک دو صاحب نے مجھے کہا تھا سیف پاور لمیٹڈ. میں نے اس کو چیک کیا ہے. سیف پاور میں ایز اے گروپ یہ جو جتنے 7-8 سال پہلے 10 سال پہلے جو آئل سے پروڈیوسنگ پاور جنریشن کے جتنے یونٹ لگے یہ سب تقریباً ایسے جیسے کہتے ہیں آپ ختم ہو جائیں گے. یہ زیادہ دیر چلنا ہی نہیں، گورنمنٹ ان سے لے نہیں رہی. اگر پیمنٹ تھوڑی بہت کر رہی ہے تو وہ بھی سبسیڈائز کم کر کے دے رہی ہے، اور ان سے نئے معاہدے ہو رہے ہیں. 3 بڑے ڈیم بن رہے ہیں اور 2 کام مکمل ہو چکے ہیں. ایک تو کراچی کا پاور اٹامک پاور اسٹیشن جو 1100-1200 میگا واٹ بجلی پروڈیوس کر رہا ہے، اور سندھ اور کراچی کے مسائل بجلی کے ختم ہو گئے ہیں. جیسے ہمارے ہاں اس وقت بہت سارے لوڈ شیڈنگ کم ہو گئی ہے، بہت کم. کبھی کبھار ویکینڈ پہ ایک آدھی باری لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوتی، وہ مینٹیننس کی ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو وہ سیٹرڈے کو یا سنڈے کو کرتے ہیں. آج ایس پی ڈبلیو ایل تو میں نے اس کا سارا ڈیٹا چیک کیا ہے. ٹھیک ہے، ڈویڈنڈ دے رہا ہے 1 روپیہ 1.5 روپیہ 2 روپیہ، لیکن آپ اس کو دیکھیں کہ 18 پیسے بھی اس نے دیا، 75 پیسے بھی 2-3 باری دیا. لیکن اس کو گورنمنٹ سے پیمنٹس کم سے کم ہوتی جائیں گی. اور اگر آپ اپنے پہ مہربانی کریں، اپنے پہ سے کہتے ہیں نا اپنے پہ مہربان ہو جائیں، تو آپ بے شک یہ جتنے پاور کے ہیں نا یہ سب ان سے اوائڈ کریں. یہ میرا مشورہ ہے، یہ میری سوچ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں. I might be wrong، لیکن جو اس کو پسند کرتے ہیں، جو اس کو چاہتے ہیں، جو ہولڈنگ رکھے بیٹھے ہیں، میں ان کو یہ نہیں کہوں گا کہ سیل کرتے ہیں. جیسے ہی وہ پروفٹ میں آئے اس کو وہ وہاں سے نکلنا بہتر ہے، کیونکہ کچھ نہیں ملنا ان سے. باقی رہا نیلم جیلم کی پاور جنریشن شامل ہو گئی گریڈ میں، اور کچھ اور چھوٹے چھوٹے یونٹ وہ چل پڑے. اتنا بڑا ڈیم محمد ڈیم بن رہا ہے، اور اس کو سوا سال ان کی پوری کوشش ہے کہ اپنے 5 سال پورے کرنے سے پہلے اس ڈیم کو چالو کر دیں. 70% کام ہو چکا ہے. کچھ پورشن کچھ لوگوں سے میری ڈسکشن ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں آرمی ہے، FW ہے، یہ وہ ہے جس نے کرتارپور 10 مہینے میں مکمل کر دیا تھا، اور بہت ہیوی ڈیوٹی تیزی سے کام ہو رہا ہے. سو برائے مہربانی اگر آپ کو میرا مشورہ چاہیے تو یہ اس کو سیف پاور کو نہ لیں. لیکن میرا آج کا جو ہے وہ ہے ATBA ایٹلس بیٹری. یہ بہت سارے لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی، کہا تھا. میں نے جب کسی زمانے میں مجھے کسی نے کہا تو میں نے اس کو 700-800 میں لے دیکھا، تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ ہے میری پاکٹ سے باہر ہے، یا اس وقت میرے پاس پیسے کم تھے، میں نے نہیں تھا لیا. لیکن اب جب میں نے اس کو تفصیل سے جا کے دیکھا تو 2 سال اس نے ڈویڈنڈ نہیں دیا. 2 سال اس نے ڈویڈنڈ نہیں دیا. دونوں سال اس نے 81-84 لگایا ہے. جو لوگ 81-84 پہ لے لیں گے ایک باری، they will make wonders. کیونکہ یہ 10 روپے بھی دیتا ہے، 35 روپے بھی دیتا ہے، 50 روپے بھی دیتا ہے. اس کی ڈویڈنڈ ہسٹری بڑی اچھی ہے. جو بیسیکلی ان کا ارننگ پر شیئر بہت اچھا ہے. اور ابھی جب یہ 2 سال اس نے لاس شو کیا ہے، 2 سال کے لاس کے بعد اس نے گریجولی جو لاسٹ 3 کوارٹر ہیں اس میں جو اس نے ارننگ پر شیئر لاس کے بعد گریجولی انکریز شو کیا ہے، وہ یہ ہے کہ پہلا کوارٹر 8 روپے، دوسرا کوارٹر 17 روپے، تیسرا کوارٹر اس نے ارننگ پر شیئر 37 ہے، اور اس نے 10 روپے ڈویڈنڈ دیا ہے، جو کہ مینز مارچ کے بعد بورڈ میٹنگ اپریل کے بعد مئی میں ایکس ہو چکا. تو اس میں آپ یہ نہ سمجھے جنہوں نے 10 روپے لینا تھا وہ لے چکے ہیں، لیکن یہ آپ گریجول ارننگ پر شیئر کو دیکھیں. تو اس لیے میں نے اس کو شامل کیا.
वरना अगर सिर्फ 2 साल का लॉस मैं देखता तो मैं कहता ना ना भाई रहने दो। लेकिन जो ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्निंग पर शेयर है तो ये चौथे क्वार्टर में ज़रूर देगा, जो कि जून 30 2021 में बनेगा। जुलाई में इसने बोर्ड मीटिंग देनी है और अगस्त में इसने एक्स होना है। ये 30 रुपये भी दे सकता है, मैं 30 रुपये के लिए नहीं आपको कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 230 250 60 में आप लेते हैं और ये 400 कर जाता है तो उस कैपिटल गेन के लिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। 20-30 रुपए की मेरी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है जब आपको 125 रुपया 150 रुपया 125 रुपये 20 रुपये मिलते हैं। लेकिन अगर आप अच्छी बाइंग कर सकें, अगर आप अच्छे रेट पे बाइंग कर सकें, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वही आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेके देगी। अब हम अपनी नई स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ रहे हैं। जुलाई इसका फाइनेंशियल ईयर है जुलाई टू 30 जून और इसका आज का रेट है 258 रुपये। इसने सिर्फ 5 रुपये आज के दिन में डाले हैं। आज बुध का दिन है, कल इंशाल्लाह मेरे हिसाब से मार्केट फिर थोड़ी सी उठेगी, लेकिन अगर 47,000 से ऊपर नहीं जाती तो फिर कल ही गिरावट हो जाएगी, क्योंकि कल जुमेरात है। जुमेरात को मोमबत्ती जलाएं और फिर उसके देखें कमाल, और साथ अगरबत्ती भी लगा दें। अब लास्ट 30 डेज का इसने लो लगाया 231 और लास्ट 30 डेज का इसने हाई लगाया 283। मैं इसको इसलिए नहीं देख रहा कि लास्ट ईयर, अब लास्ट 365 डेज 1 ईयर, लास्ट 1 ईयर का लो इसने 161 लगाया, 161 और हाई इसने लगाया है 319। अगर आप इसकी डिविडेंड हिस्ट्री को देखें, वेरी क्विक हम इसको फौरन डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ क्वार्टर 2014-15 में इसने 12 रुपये डिविडेंड दिया फोर्थ क्वार्टर में। अर्निंग पर शेयर 58 रुपये, पूरे साल की कमाई 58 रुपये पर शेयर उसने कमाया। वो कमा के 12 रुपये आपको दे रहा है और फिर अपने पास कैपिटल रख रहा है फॉर रनिंग एक्सपेंस। 2015-16 के फोर्थ क्वार्टर में से 15 रुपये 50 पैसे दिए। गुड वन, एक्सलेंट। और इसमें इसका इंक्रीमेंट भी बहुत हुआ। 16-17 में इसने 700-800 लगाए। ये मेरे ख्याल है वही टाइम था जब मैंने इसको देखा था और मैंने समझा कि ये मेरी पॉकेट से हाई, या उस वक्त मेरे पास पैसे कम थे। तो फोर्थ क्वार्टर में जब इसने 15 रुपये 50 पैसे दिया, अर्निंग पर शेयर 73 रुपये 73। जब ऐसी सिचुएशन आप देखें तो ये आपको, मेरे जैसे बंदे को श्योरली फीलिंग मिल जाती है कि ये आगे जाके पैसे रख रहा है और ये इसने बोनस शेयर देंगे। बोनस शेयर उसी सूरत में होते हैं जब कंपनी कहती है भी हम अपने पल्ले से पैसे ना दें और बोनस शेयर बांट दें, लोगों को अपना वेटेज बढ़ा लें। 2016-17 जो कि 54,000 55,000 मार्केट क्रॉस की थी, उसके फोर्थ क्वार्टर में इसने 35 रुपये दिए। 35 रुपये की वजह से ये 1,000 रुपया क्रॉस कर गया था। इसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि इसकी छत 1,000 रुपया है। 35 रुपये जब इसने डिविडेंड दिया तो 84 रुपये अर्निंग पर शेयर था। और 2017-18 में फोर्थ क्वार्टर में 10 रुपये दिए, 40% बोनस शेयर दिए। और आप समझ लें कि भी जब उसने बोनस शेयर दिए तो अर्निंग पर शेयर 34 रुपीज़ था। 34 रुपीज़ मिलियंस ऑफ शेयर्स को ज़रब दे के देखें, ये हैंडसम ह्यूज कैपिटल है। और जब इसने 40% बोनस शेयर दिए तो इसने 1,000 को क्रॉस किया। लेकिन बैड लक 2018-19 कोरोना, इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया, बैड लोड शेडिंग भी कम थी। 24 रुपये लॉस था। 24 रुपये लॉस भी बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी क्वांटिटी, क्योंकि इसकी शेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो जब आप 19-20 के टाइम को देखते हैं, चारों क्वार्टर में लॉस है और 13 रुपये तक लॉस है। जो 24 रुपये का लॉस था वो कम हो के 13 रुपीज़ के लॉस पे आ गया। ये एक वन सिग्नल, जब अगर आप 2019-20 में मौजूद थे तो आपको महसूस होना चाहिए 24 से 13 पे
लॉस आ गया तो ये बेहतरी हो रही है। 2020-21 में क्योंकि इसका जुलाई टू सितंबर 3 महीने का ये पहला क्वार्टर है, अक्टूबर टू दिसंबर सेकंड क्वार्टर है, ये हो गया 2020 ख़त्म हो गया। हम थर्ड क्वार्टर जो है इसका वो बनता है जनवरी टू मार्च 30। अब ये इसने 10 रुपये डिविडेंड दिया, अर्निंग पर शेयर 27 रुपये, जबकि लॉस से रिकवर करके ये आया 27 रुपये। अभी वो अकोमुलेट कर रहा है अर्निंग पर शेयर, और अगर फोर्थ क्वार्टर जून 30 को ये अनाउंस करता है कि इसकी 50 से ज़्यादा अर्निंग पर शेयर है, फॉर श्योर इट विल गिव हैंडसम अमाउंट ऑफ कैपिटल इंक्रीज। और डिविडेंड मस्ट है कि क्योंकि इसने 2 साल नहीं दिया तो ये भी 20-30 रुपये से ज़्यादा होगा। वल्ला आलम ऐसे होता है या नहीं होता, ये जस्ट गैस है, अंदाज़ा है, लॉजिकल बात कर रहा हूँ मैं, कोई अपने से नहीं लगा रहा ना, आई माइट बी रॉन्ग। सो आप इसमें चांस ले सकते हैं, बहुत अच्छा चांस है क्योंकि रेट भी कम है, 258 है। लेकिन आप जब मैं किसी को कहता हूँ ना कि जी 250 से कम पे बाय करें तो वो कहते हैं 250 पे आएगा तो बाय करेंगे, नहीं, आप 242 पे भी ऑर्डर लगा दें, 244 पे भी लगा दें, आएगा तो वो आपको देगा तो फिर और नीचे आएगा। ऑर्डर लगाने में कोई खर्च होता है। बहुत सारे लोग कहते भी जो वहाँ पे आएगा, आप वहाँ पे मौजूद होंगे तो आप लेंगे ना, आपने जो आपकी पसंद है, जहाँ आप लेना चाहते हैं, जहाँ आप लेना चाहते हैं वहाँ पे ऑर्डर लगा दें, आए ना आए, नहीं आए ना सही। बाकी जो अपनी फोर्थ लेवल के ऊपर 2019-20 में लो इसने लगाया 87, और उससे पिछले साल में इसने लो लगाया 82, 84 या 82। तो मैं इसको कहूँगा कि जब डिविडेंड नहीं दिया, एक साउंड अच्छी कंपनी अगर इस लेवल पे आती है तो बहुत सारे लोगों ने लिया होगा, जो लिए, जिन लोगों ने लिया उनमें बड़ा विजन है, बड़ा फोकस है, बहुत सोच होती है। हाईएस्ट ने 290 लगाया 2019-20 में। अब इसको ऐसे इसका मैं लें तो 2018-19 में से 81 लगाया, जो मैं 84 बोल रहा था, 81। अब 2016-17 में इसने हाई जो लगाया 1005 रुपीज़ था। जो उस बंदे ने 84 में लिया या 80 में ले और उसको 1000 का कैपिटल मिल जाए, आप कोई अंदाज़ा कर सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं इसकी अर्निंग से, इस स्टॉक एक्सचेंज की कमाई से। बहुत सारे लोग हैं जो लॉस शो करते हैं, लॉस को पीटते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी इंटेलिजेंस भी चाहिए, थोड़ा वर्किंग चाहिए। आप प्लॉट लेने जाते हैं, आप पटवारी से तहकीक करते हैं, आप एनवायरनमेंट, माहौल, नेबरहुड को देखते हैं और बहुत कुछ देखते हैं, बड़ा टाइम लगाते हैं। आप इतनी जल्दी प्रॉपर्टी बाय नहीं करते। इस चीज़ में लोग ऐसे है कि ब्रोकर कहता है ले लो, आप ले लेते हैं। ना लें, अपनी वर्किंग भी करें, अपना सर्फिंग करें, अपनी पूरी तहकीक करें। आप मुझसे मशवरा करना चाहिए, व्हाट्सएप का नंबर गिवन है। 2000 शेयर अगर कोई 95-87 इसलिए लो लगाया था, 95 पे बाई करता है तो 1,90,000 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गई। और अगर 2000 शेयर कोई सेल करता है 280 पे तो 5,60,000 आया, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज 3,70,000 और नेट प्रॉफिट हो गया 3,40,000। वेल, बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, मैं बर्दाश्त करता हूँ, मेरी बर्दाश्त भी अच्छी है। वो कहते हैं कि जी आप ये आइडियल किस्म के फिगर देते हैं, ये इस तरह हमें वेरी गुड बाइंग भी नहीं मिलती, वेरी गुड सेलिंग भी नहीं मिलती। मैं कहा वो फिर सारे है विजन की, फोकस की और स्ट्रेटजी की। स्ट्रेटजी आप खुद बनाएं, जो मैंने चार्ट बनाया है उसको मैं डेवलप करूँगा इंशाल्लाह। मैं आपके साथ साथ स्टेप बाय स्टेप चलूँगा और मैं जितना हो सकेगा मेरे से मुमकिन है मैं आपसे कोऑपरेट करूँगा। मैं अपने पास कुछ नहीं रखूँगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फेसबुक पे शेयर भी करें और मुझे और लोगों को इंट्रोड्यूस करने के लिए इनको दूसरों को
टैग भी करें। थैंक यू वेरी मच।